In this video, we will discuss about second model of inventory control. So we start the model number 2, model 2. So the statement of the model is when the production rate is uniform, demand is not uniform. So basically the difference between model 1 and model 2 is this. So in model 1, we remember the statement of the model 1, production rate is uniform, demand rate is also uniform, but here the demand rate is not uniform. ज्यादा और कम हो सकता है demand rate as per requirement, and the shortage are not allowed. So this is the same thing as per model 1. The shortage दोनों ही models के लिए allow नहीं है, shortage not allowed. So first we remember the statement, then we do the proof of the particular model. So this is the deterministic model, model number 2. So here we remember the statement, production rate is uniform, demand rate is not uniform, and shortage are not allowed. So we shall prove this model. So proof of this model. So again, we assume that let Q be the units of quantity, Q be the units of quantity produced. Now अब वी डिफाइन द कैपिटल आर. अब आर हमारा कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल डिमांड को. सो आर बी द टोटल डिमांड. अब डिमांड रेट यूनिफॉर्म नहीं है, बट जैसे हमें 100 आइटम्स रिक्वायर्ड है, पर किसी दिन हमने 10 ऑर्डर कर दिए, तो किसी ने 12 कर दिए, किसी ने 15 कर दिए, किसी ने 5 किए. सो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म. सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल डिमांड की. सो आर बी द टोटल डिमांड. तो आर हमारी जो कैपिटल आर है वो रिप्रेजेंट करेगी टोटल डिमांड को. तो आर बी द टोटल डिमांड in time period t. Total time period t. So then the number of cycles, number of अब कितने cycles में हम उस R demand को complete कर रहे हैं, number of cycles we can obtain R upon Q is equal to n. So total demand upon production equal to number of cycle, that is n. This is our equation number 1. Now अब इसको रिप्रेजेंट करने का वे सेम होगा जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए, so now, so we again here we have a total production that be denoted as a Q. This is our O. Now the time for each particular thing will be distinct or different. अब पहले क्या था, टाइम पीरियड सेम था. अब यहाँ पर क्या है कि जो डिमांड के अकॉर्डिंगली हमारा टाइम भी चेंज होगा. So that means हम कंसीडर करेंगे t1 टाइम. Now second we consider as t2 time. So this is our t2. So this time we consider as t2, and similarly and so on tn. Okay, so now we write down as let t1, t2, t3 and so on tn be the time of successive production. क्योंकि प्रोडक्शन रेट तो हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, और जैसी डिमांड होगी एज पर डिमांड वी आर डूइंग प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली. सो जो टोटल टाइम टी होगा, तो देन टोटल टाइम टी वी कैन रिटन एज t1 प्लस t2 प्लस t3 और प्लस tn.
So this is our equation number 2. Now we obtain the holding cost. So what is the holding cost at this position? So the holding cost of inventory for n periods. So this can be calculated, a holding cost will be denoted by C1 into एरिया। अब यहाँ पर क्या है, टाइम t वेरी कर रहा है हर उसके लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनटू एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सो दिस वी राइट डाउन एज C1 इनटू एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो जो फर्स्ट वाले का एरिया होगा तो वही सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 क्यू इंटू T1। नेक्स्ट का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, सो दैट में Q इंटू T2, और प्लस अगला जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी Q3, और प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट हमारा क्या होगा, 1/2 Q इंटू Tn। तो जो लास्ट इंटरवल होगा, बिकॉज वी आर moving further to nth term, so this will be 1/2 Q इंटू Tn। सो अब यहाँ से हम इसे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो यहाँ से 1/2 Q कॉमन ले लिया, C1 है ही हमारा, तो दिस विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस Tn, और ये हमने क्या अज्यूम किया है, यूजिंग 2 कर देंगे तो T अज्यूम किया है, सो दिस वी ऑल्सो डिनोटेड एज C1 इंटू T। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेटअप कॉस्ट असाइन करने। तो व्हाट इज द सेटअप कॉस्ट, सो सेटअप कॉस्ट विल बी इक्वल टू एन साइकिल्स हो गए, तो एन साइकिल एन इंटू C3, और एन इंटू C3 दिस मीन्स R अपॉन Q इंटू C3। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारी, होल्डिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1/2 C1 Q इंटू टी, और प्लस R अपॉन Q इंटू C3। सो दिस इज अवर टोटल कॉस्ट, मतलब होल्डिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट। नाउ अब आप कहाँ जाएंगे, एवरेज कॉस्ट पे, तो अब एवरेज कॉस्ट निकालनी है। सो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट वी डिनोटेड एज C, सो विच इक्वल टू 1/2, तो Q से T से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 C1 इंटू क्यू, और प्लस R upon QT into C3. So we this above equation we divide by T. So for calculating the average cost. Now अब obtain करना है for the minimum value of C. So for the minimum value ऑफ सी, अब सी की मिनिमम वैल्यू के लिए वही फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, डी सी अपॉन डी क्यू विच इज इक्वल टू 0, एंड डी स्क्वायर सी सेकंड डेरिवेटिव डी क्यू स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। सो हियर वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी सी अपॉन डी क्यू, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 5 से। तो अब हम यहाँ पे मूव करेंगे फ्रॉम 5 के लिए, तो डी सी अपॉन डी क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/2 C1, और क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्यू है डिनोमिनेटर में, तो 1/क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/क्यू स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/क्यू स्क्वायर, और ये सब R/T इंटू C3 एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो इसे पुट कर देंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा कि 1/2 C1 इज इक्वल टू, माइनस साइन है तो ये प्लस से हो जाएगा, तो 1/क्यू स्क्वायर R/T इंटू C3, तो R/T इंटू C3। तो यहाँ से अब हमें Q की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, क्योंकि Q हमारे क्या है, Q हो गया, Q स्टार हो गया, T स्टार हो गया, और हमारा Z स्टार क्या होगा, दैट आर द ऑप्टिमल वैल्यूज। अब ऑप्टिमल वैल्यूज Q, तो total production, that is, so now we obtain the value of Q, so this we can write down as Q square, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2R, और C3 न्यूमरेटर में है ही, और ये C1 जो होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो C1 इंटू टी, तो C1 इंटू टी,
So then the value of Q star will be square root of 2R C3 upon C1 into T. So this is the value of Q star by using the model 2. So model 2, production rate is infinite, demand is not uniform, and shortage are not allowed. So we obtain the value of Q star. So after obtaining the value of Q square, अब हम जाते हैं कहाँ पे, सेकेंड डेरिवेटिव पे। अब सेकेंड डेरिवेटिव में टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है सी को। तो डी क्यू स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू, अब एक बार डिफरेंशिएशन हम यहाँ एवं कर चुके हैं, अब इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तो देखो प्योरली कांस्टेंट टर्म हो गया, उसमें क्यू नहीं है तो इसका जीरो हो गया, यहाँ पर क्यू है। अब जैसे 1/क्यू स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्यू रेस टू पावर -2 लिखते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और क्यू रेस टू द पावर -3 हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव इसका d/dq। तो सेम यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो प्लस, अब ये माइनस साइन है तो माइनस यहाँ से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/क्यू रेस टू द पावर 3, ये हो जाएगा प्लस, और ये तो कांस्टेंट है ही R/T × C3। सो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यूज होंगी, क्योंकि डिमांड रेट भी और हमारा टाइम भी हो गया C3 और R, तो दिस गिव्स अस पॉजिटिव, सो विल बी पॉजिटिव। तो d²C/d क्यू² विल बी पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो देन वी ऑब्टेन सी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, जब सी की मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, तो सी मिनिमम हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, तो सी हमारा क्या है, टोटल जो एवरेज कॉस्ट आई है, सो दिस विल बी 1/2 C1 into Q। सो एवरेज कॉस्ट पे 1/2 C1 into Q, और Q की वैल्यू है हमारी 2R C3/C1 into T, प्लस सेकेंड टर्म क्या है हमारा, सेकेंड टर्म है R/Q/T × C3। तो R/C3/T को तो यहाँ रख दिया, और Q डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में Q की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2R/C3/C1T। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला टर्म तो हम अभी एज इट इज रख लेते हैं, 1/2 C1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2R/C3/C1 into T, और प्लस ये हो जाएगा 1/1/x, तो ये C1T ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R/C3/T, और इधर लिख देंगे हमें C1T/2R/C3। सो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस। अब सिंप्लीफाई करें, C1 यहाँ पर भी है, C1 इधर भी है, तो C1 से C1 कटेगा तो √C1 आ जाएगा। तो 2 अंदर भी है, इनसाइड भी है, 2 आउटसाइड भी है, तो 2 इनसाइड, तो इसको क्या लिख देंगे हम, तो एक बार मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो C1² हो जाएगा, इसको इनसाइड ले जाएंगे तो, और ये 2 है ही R/C3, और इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और C1 into T। ऐसे ही इस टर्म को भी लिख देते हैं स्क्वायर रूट के इनसाइड। तो देखो C1 और T तो है ही, R अंदर जाएगा तो R² हो जाएगा, C3 अंदर जाएगा तो C3² हो जाएगा, और T अंदर जाए इनसाइड जाएगा तो T² हो जाएगा, और 2R और C3 अब कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर C1 है तो ये C1 से C1 कट जाएगा एक, और यहाँ पर हमारा C3 है तो एक C3 से C3 कट जाएगा, एक R से R कट जाएगा, और T से T कट जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आएगा कैंसिल आउट हो जाए, तो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, रिमेनिंग टर्म्स हम लिख देंगे यहाँ पे। तो एक तो हो गया R हो गया, एक C1 हो गया, एक C3 हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो और 2 2 जा 4 मीन्स 2T, तो इस 2 से 4 कट चला जाएगा 2 टाइम। और सेकेंड टर्म्स में क्या होंगे, तो सेकेंड टर्म होगा हमारा, एक तो R होगा, ही होगा R, C1 है ही है, C3 है ही है, अपॉन 2T। तो दिस इक्वल टू, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R/C1/C3/T। सो नाउ C1/C3/2T। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ, अब 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2R/C1/C3/T। सो दिस इज द C मिनिमम, दिस इज द
C minimum. So we remember these formulas for obtaining the solution of the questions based on मॉडल 2. तो C मिनिमम और Q स्टार. अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करने पर क्या रिलेशन निकल के आ रहा है. सो वी राइट डाउन एज इट इज क्लियर दैट द relation of model 2 may be obtained from the corresponding relation 1 replacing R by R upon T. So that is the average demand rate. Average demand rate. So hope you understand. Thank you.